ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مزدور کے حوالے سے ہم بات کریں، مزدور کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، اور فرائض کیا، ہمارے کیا فرائض ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ہم نے اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں قیامت کے دن اس شخص کے مد مقابل ہوں گا کہ جو مزدور سے کام پورا لے مگر اسے وقت پر ادا نہ کرے، اس کی جو ادائیگی ہے وہ پوری نہ کرے۔ تو ناظرین، سرکار یہ فرما رہے ہیں اور المیہ یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ آج ہم کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ اس پر ہم ایک اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، جہاں پر ہر شخص کے، یعنی اگر بیوی ہے، ماں ہے، سب کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، ہر بندے کے حقوق کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مزدوروں کے بھی حقوق اب نہیں، کئی 100 سال پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اور اچھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ تب بھی واقعات تو ہوتے تھے تو حقوق بیان کیے گئے نا، لیکن انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور جب ہم مزدور کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ادائیگی تو کرنی ہے، اجرت تو دینی ہے، لیکن اس کی کام کے مطابق دینی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بس تھوڑے بہت پیسے دیتے، کیونکہ ہوتے کتنے ایک مزدور کی دیاری جس کو ہم کہتے ہیں، ادروائز پیسے بہت لگاتے ہیں، لیکن جب مزدور کو پیسے دینے ہو نا تب ہمیں وہ بچت بھی یاد آ جاتی ہے، پھر ہم یہ سوچتے کام کتنا کیا ہے۔ خیر ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم خصوصی طور پر مزدور کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کا ہم نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور ہمارے کیا فرض ہیں جب ہم کہیں کام کرتے ہیں، ہم نے کس طرح سے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے اور دین کے کیا احکامات ہیں، اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے ڈی آئی جی ٹریننگ محبوب اسلم صاحب نے اور مسز محبوب اسلم صوفیہ وڑائچ صاحبہ نے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ محبوب صاحب، آپ کی جانب پہلے آؤں گا، چونکہ المرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ جب 5 بچوں سے آغاز ہوا اور آج تقریباً 60 بچے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، بچوں کی کفالت میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آغاز کب ہوا اور کیا موٹیویشن تھی، کیا معاملات تھے جب آپ نے سوچا کہ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے؟ بیسیکلی دیکھیں، اٹ واز اے لیگیسی۔ صوفیہ جو میری وائف ہیں، شی از دا اونلی ڈاٹر آف ہر پیرنٹس۔ تو جو میرے فادر ان لا تھے، انہوں نے بیک ان 1995 خود یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، خود لنگر بناتے تھے اور فجر کے وقت ڈرائیور کے ساتھ جا کے جو مزدور چبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ سو رہے ہوتے ہیں، دہاڑی دار مزدور، ان کو وہ ناشتہ کراتے تھے۔ اچھا۔ When in 2009 he died, تو I being the only son in law and son as well، تو بے شمار دنیا میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے بتایا وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ ان کی لیگیسی کو نہ صرف کنٹینیو کریں بلکہ اس کو بڑھائیں۔ زبردست۔ تو جو وہ لنگر ڈیلی بھجوا رہے تھے، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے گھر سے ڈیلی روز صبح سنس 2009 کوئی 900 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے۔ There are 70 families جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمیں نہیں جانتے۔ کسی نے ریکمینڈ کیا کہ جی ہمارے محلے میں ایک سفید پوش رہتا ہے، افورڈ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ہم نے اس کا منتھلی راشن لگا دیا۔ اینڈ دیر آر 60 انڈیویجولز جن کو ہم منتھلی سٹائپنڈ دے رہے تھے، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000۔ یہ پچھلے رمضان میں کوئی، یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا یہ بچوں والا۔ پچھلے رمضان سے کوئی ایگزیکٹلی 1 ہفتہ پہلے شی سیڈ کہ محبوب ہم پیسے تو دے رہے ہیں اس سارے ویلفیئر کے کام میں، بٹ وی آر ناٹ فزیکلی انوالوڈ۔ بالکل۔ تو ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس میں ہم خود فزیکلی انوالو ہوں۔ تو ہم نے بڑا سوچا، اور اس کو ہمیشہ صوفیہ کو یہی ہوتا تھا کہ جب ہم سگنل سے گزر ہوتے تھے، اسپیشلی جو بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں چھوٹے، تو یہ کہتی تھی کہ ان میں سے ہم 2-4 بچے اڈاپٹ کر لیں، شاید یہ کچھ کر لیں۔ تو وہ سوچ کے پھر ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم وی لیو ان کیولری گراؤنڈ، ہمارا اپنا ذاتی گھر کیولری گراؤنڈ میں، تو ہم نے کیولری گراؤنڈ میں ایک گھر رینٹ پہ لیا، وہاں ہم نے بچے اڈاپٹ کرنے شروع کیے۔ شروع میں وہ بچے جو بالکل یتیم اور مسکین تھے، پہلے 5 بچے ہم نے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد اگر لیٹ سے کسی کا سنگل پیرنٹ ہے، کچھ اس طرح کی وہ ڈفرنٹ سٹوریز ہیں، وہ صوفیہ آپ کو بہتر۔ یہ صوفیہ کے ساتھ میرا انٹریکشن آج پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ المرا فاؤنڈیشن کو میں آج سے 2 سال پہلے سے جانتی ہوں، بیکاز میں نے کوئی کافی 4-5 دفعہ ان کے ساتھ پروگرام کیا، ایک مختلف چینل پر بھی۔
और ये मैंने देखा हुआ है कि किस तरह से 5 बच्चे, फिर शायद 10 हुए, फिर 15 हुए, और फिर बढ़ते बढ़ते, और अभी फ्लड में जो आप लोगों ने काम किया। सोफिया, मैं यहाँ पर वो वाकया भी चाहूँगी जो आपने मेरे शो में आकर बताया था कि वहाँ पर जो बच्चे थे, और जब उनके लिए स्पेशली आपने स्कूल्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ना सिर्फ इनमें यतीम बच्चे हैं बल्कि वो बच्चे भी हैं जो अफोर्ड नहीं अब कर सकते, या पेरेंट्स उनके आपके पास छोड़ गए। सो वहाँ पर जब क्लास में टीचर ने शायद पूछा था गालिबन कि आप सबसे पूछ रहे थे कि आपके फादर क्या करते हैं, सो आप ही के एक बच्चे ने कहा, वो अब आप कंटिन्यू करें ना वाकया, वो इतना खूबसूरत वाकया है कि मैं आज तक जहाँ पर भी जाती हूँ और जहाँ पर भी किसी NGO फाउंडेशन का जिक्र होता है तो ये लाजमी कोट करती हूँ। हमारे बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। आज अब मैं थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्कूल बना लिया है, अच्छा, माशाल्लाह, प्राइवेट स्कूल के नाम से, और अब हमारे तमाम बच्चे उधर जा रहे हैं। और क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हमने वो रखा है जो किसी भी लाहौर के अच्छे बड़े स्कूल से कम नहीं है। सही। और बाकी ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि सोसाइटी के इर्द गिर्द के अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी वहाँ आ रहे हैं। नॉन प्रॉफिट स्कूल है, तो जब बच्चे उस स्कूल में जाया करते थे तो वहाँ पे टीचर ने एज़ यूजुअल सब बच्चों से जैसे एक रूटीन में पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, तो हमारे बच्चे ने बहुत फ़ख्र से, बहुत खुशी से, मान से बताया कि मेरे पापा DIG हैं। हाँ। तो इस तरह ये से इतना बच्चे खूबसूरत बहुत वाक़या है, attached हैं और बहुत प्यार करते हैं, और पापा की तो उनमें जान है बसी हुई ना, क्योंकि हर वीकेंड उन्होंने पापा के साथ शॉपिंग करने जाना होता है। अच्छा, और हफ्ते या 10 दिन बाद कोई एक दिन ऐसा होता है जब हम सब मिलके, अच्छा, कहाँ हम शॉपिंग करने जाते हैं, किस तरह से बच्चों की फरमाइश होती है? बिल्कुल, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी बड़े मॉल में जाएं, क्योंकि 60 बच्चों के साथ जाना, और 4 हमारे अपने भी बच्चे होते हैं साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इतने सारे लोगों के साथ आप किसी छोटी शॉप में या ऐसी जगह पे जा नहीं सकते, एक जगह पर जाएंगे तो वो घबरा भी जाएंगे। बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश करते हैं मॉल्स वगैरह में जाएं, और ये होता है कि वहाँ पे बच्चों को कहा जाता है कि आप अपनी पसंद की कोई एक चीज़ ले लें, कोई टॉय ले लें, कुछ ले लें, क्योंकि अदरवाइज़ तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती हैं। हम लोग खुद शॉपिंग करते हैं, बट बच्चों को एक उनकी ख्वाहिश होती है ना कि अपनी पसंद की चीज़ लेने वाली, टॉय लेना अपनी मर्ज़ी से, तो वो उनके साथ जो है ना एक्टिविटी वो। अच्छा महबूब साहब, जिस तरह से ये सोफिया भी बता रही है कि 4 बच्चे आपके अपने साथ होते हैं, अब अपने बच्चे और ऑब्वियसली जिनको आप जिनकी कफालत कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से, फिर कैवेलरी में ही इन्होंने उनके लिए भी 3 घर जो है वो लिए हुए हैं, तो वैसा इंतज़ाम, फिर वैसे ही स्कूल का भी इंतज़ाम, तो कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चों को फील ना हो कि ये इनके अपने हैं और ये इस तरह उनको भी फिर क्या यही अलाउ होता है एक एक टॉय लेना है? वो देखिए माशाल्लाह अभी हमारे बच्चे कंपैरेटिवली बड़ी एज में आ गए हैं, बड़ी बेटियां दोनों बहुत सेंसिबल एज माशाल्लाह सेंसिबल हैं, 17 ईयर्स में यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई हैं, तो उनको समझाना कि ये बच्चे बड़े स्पेशल चिल्ड्रन हैं और इनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है और हमने इन्हें प्यार देना है और हमने इन्हें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और शेल्टर और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं देनी, प्यार इंपॉर्टेंट है हमारा। और किसी भी यतीम खान, देखिए हमने इस घर का नाम रखा हुआ अपना घर, हर घर का नाम हमने रखा हुआ अपना घर, ताकि बच्चों से जब कोई वो पूछता है ना आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं अपने घर रहते हैं। कहाँ से आए हो? अपने घर से आए हैं। बाप क्या करता है? DIG है। तो वहाँ पे बात काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बशना में एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल बीकन हाउस, मैं नाम ले लेता हूँ, उसकी जो ओनर की बेटी हैं वो सोफिया की क्लास फेलोज हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र की कि हम आपको बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन हमने बड़ा सोचने के बाद हमने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वहाँ देखिए बच्चे जाते हैं मर्सिडीज पे, BMW पे, तो हमारे बच्चों ने कॉम्प्लेक्स में आ जाना था। हाँ। तो हमने उन्हें एक अच्छे लेवल का प्राइवेट स्कूल ज़रूर दिया, और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाउंडेशन है उसने अपना एक इंडिपेंडेंट स्कूल बना लिया है। वहाँ पे इर्द गिर्द की लोकेलिटी के लोग भी आ रहे हैं, और लेट्स से अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है 30,000, तो हमने उन बच्चों के लिए सिर्फ रखा हुआ है 4,000, ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेस्ट अवेलेबल एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। तो इस वजह से वो बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना इतना अब मुश्किल नहीं है, और अब उन बच्चों को भी एहसास हो गया कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये इनका अपना, अक्सर वो अब हमारे घर आ जाते हैं। मसलन हमने जो पहली इफ्तारी की वो अपने घर में की, लॉन में बैठ के सब ने की, फिर ऐसा कोई छोटा मोटा इवेंट आ जाए, अभी पहली ईद होएगी इन बच्चों के साथ, तो हम ईद पे प्लान कर रहे हैं कि इन बच्चों के साथ हमने घर पे ईद कैसे मनानी है, तो उनको अब एहसास हो गया कि ये हमारे अपने घर हैं और ये हमारे पेरेंट्स का घर है और इसमें हमारे बहन भाई रहते हैं, तो वो भी उसी तरह से आके सम टाइम उस घर में वो। आपने शुरू में जिक्र किया कि आप सिग्नल पे भी देखते थे जब बच्चे, तो मैडम ये कहती थी कि इन बच्चों का क्या होगा, सारे अक्सर लोग सोचते हैं मगर वो कोई कदम नहीं उठा पाते, कदम उठाना बड़ा मुश्किल काम है।
तो ज़्यादातर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो बच्चे हैं इनमें सारे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या कुछ के पेरेंट्स भी मौजूद हैं नहीं, और ये इनमें बेटे बेटियां कितने हैं? नहीं, सब फिलहाल हमने मेल रखे हुए हैं। हमारे अच्छा। पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था फीमेल रखने का, लेकिन इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड सिंस आई एम इन पुलिस सर्विस, ठीक है। सोशल मीडिया और इस तरह के प्रेशर्स भी होते हैं, तो हम सिर्फ वो करना चाह रहे थे जो हम मैनेज कर सकें। सही है। तो फिलहाल हमने सिर्फ मेल बच्चे रखे हैं। लेकिन क्यों, व्हाई ओनली मेल्स? उसमें मैडम देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बैठा हूँ, मौलाना बैठे हुए ज़्यादा बेहतर तबसरा कर देंगे। लेट्स से मैंने तो बड़े दिल से कहा कि जी इनको मैंने बच्चियां बना के रखा है। वो हमने बच्चों का क्राइटेरिया रखा है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल की बच्चियां आ जाती हैं, वो बच्ची हो जाती है 13-14 साल की। मैं तो उसको दिल से समझता हूँ बेटी, और मैं बाप भी समझता हूँ। मल्ले का इमाम मस्जिद फतवा लगा देता है जी आप नामहरम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं क्या करूँगा? इसका क्या जवाब है? मौलाना से लेकिन देखिए नियत और ये जो सबके लिए काम है ना, नहीं, शरीयत जो है फतवा वो नियत पे नहीं लगाती, वो ज़ाहिर पे लगाती है। तो उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही पर है, मुआशरा भी हमारा ऐसा है, तो है ना साथ। उनका फैसला जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पे मेल की वजह सिर्फ फीमेल ही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर जो है तमाम तर स्टाफ जो है वो भी फीमेल का ही होता है। इस तरह तो फिर देखे ना कि मेल के साथ साथ आपका भी वो प्रॉब्लम करेंगे जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ा करना है। मुस्तकबिल में जो उम्मीद है ये सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल मौलाना, हमारा अल्टीमेट देखिए, वी आर वेरी लकी। मैं जिक्र करना चाहूँगा, अच्छे लोगों का नाम लेना चाहिए। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, लाहौर में एक हाउसिंग स्कीम है सेंट्रल पार्क, उसके ओनर है मियां ताहिर साहब। उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह दी है ताकि हम ये अभी जो घर है तीनों जिनमें बच्चे रह रहे हैं, ये रेंटेड हाउसेज हैं और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कैवलरी ग्राउंड इट्स एक्सपेंसिव एरिया, और वहाँ पे मतलब गेटेड कम्युनिटी एक प्रॉपर। हाँ, तो वहाँ पे एक घर का रेंट ही 1,70,000 है। जी जी। तो वो ही वॉज वेरी काइंड, उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह दी है। अभी हमने वहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दी है। हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा बच्चों का 8 कनाल में एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाने लगे हैं, जबरदस्त, जिसमें वी आर प्लानिंग के कोई 200 के करीब बच्चे रहेंगे। और वो सोसाइटी काफ़ी बड़ी, 1600 एकड़ पे बड़ी सोसाइटी है। उसमें डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम्स हैं। Exactly, जी, उसमें एक और medical- वो तमाम एमिनिटीज भी इंजॉय कर सकते हैं।